Hello, Joe. Let's read a given question. The question says there are two parallel vertical metallic rails A, B, and C, D are separated by 1 meter. They are connected at the two ends by resistance R1, R2 as shown in the figure. A horizontal metallic bar L uh, of mass 0.2 kg slides without friction vertically down the rails under the action of gravity. There is a uniform horizontal magnetic field of 0.6 Tesla perpendicular to the plane of the rails. It is observed that when the terminal velocity is attained, the power dissipated is in R1 and R2 are 0.76 watt and 1.2 watt respectively. If the terminal velocity of bar L is x meter per second and R1 is y ohm and R2 is z ohm, then find the value of x plus 76y plus 10z. Given we can take the value of g as 9.8 meter per second square. So to understand this question, we need to understand about the concept of motional EMF under external force. ठीक है, तो this is the concept that we will be using over here. So simultaneously we will try to analyze the situation. So ये हमारे पास दो rails given है. अब यहाँ पे दो rails के ऊपर एक हमारी जो metallic bar है, basically they are connected by two ends. A horizontal metallic bar of length L, यानी कि ये एक length L की rod है जो कि connected है और ये slide कर रही है इसके ऊपर without friction given है. And this is, let's say मान लेते हैं ये हमारी rod है. This is resistance between A and C, इसको बोला गया R1. This is resistance R2 और इसका नाम है BD. ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम इसको ध्यान से एनालाइज करें, सो दिस इज द केस ऑफ मोशनल ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है. देयर इज अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स. ठीक है ना, तो प्लेन ऑफ द रेल्स को परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इनसाइड. तो इनसाइड को हम क्रॉस से शो कर देंगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया है अंदर की तरफ. एंड यहाँ पे अगर हम देखें, सो इस हमारी जो रॉड है बेसिकली मेटालिक बार है, इसके ऊपर इसका वेट mg जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ स्टार्ट होगी चलना. ठीक है, अब एट द सेम टाइम जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है एंड ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक मेटालिक बार मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है. सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस विच इज द मोशनल ईएमएफ एंड दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज बीवीएल. ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ड्यू टू दिस EMF and current will also be induced, and that current value we can write it as to be BVL upon resistance, right? So यहाँ पे resistance दो है तो हम इसको RE लिख रहे हैं, that is R equivalent. ठीक है, so we need to now understand कि अगर हम ध्यान से देखें तो current in the rod किस direction में होगा, वो हमें current की direction निकालनी है. So current की direction के लिए we will make use of right hand palm rule. So according to right hand palm rule, we need to put the fingers of right hand in the direction of magnetic field and thumb in the direction of the force. तो palm का जो face होगा, right hand palm का जो face होगा, that will give the direction of high potential side. So this will be the high potential side and this will be the low potential side. So according to this we can say the battery this will be behaving as if it is a battery source, right? कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से फ्लो होगा. ठीक है, इन द सर्किट. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो दिस विल बी अगेन द केस जहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. सो वी नो for current carrying conductor in magnetic field experiences a force and that force is given by F is equals to ILV. ठीक है, अब इसका डायरेक्शन अगर हमें निकालना है तो जस्ट वी नीड टू अगेन यूज द राइट हैंड पाम रूल. सो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. देख सकते हैं हम. तो ये करंट है हमारा, सो फोर्स ऊपर की तरफ लगे एंड इसको हम कह देते हैं FM, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. इट विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें, अब यहाँ पे ये फोर्सेस हमने यहाँ पे शो कर दी. नाउ वी हैव टू फर्दर
एनालाइज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स एफ एम की वजह से जो नीचे वाली फोर्स है दैट इज ड्यू टू वेट वो कम होती जाएगी एंड इवेंचुअली उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होते होते कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब वो कांस्टेंट होगा सो दैट विल बी वी कैन से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो इन दैट केस, ठीक है ना। सो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और वो क्वेश्चन में गिवन है x मीटर पर सेकेंड, वो भी हमें फाइंड करनी है बेसिकली। तो वी कैन से इन दैट सिचुएशन इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बार L is x मीटर पर सेकेंड एंड R1 R2 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब अगर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होने की बात की अगर हम सिचुएशन देखें तो रॉड पे जो फोर्सेस होंगी वो बैलेंस होंगी। सो आफ्टर द वी कैन से अंडर इक्विलिब्रियम या फिर आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे हम, एफ एम विल बी इक्वल्स टू आई बी एल, सॉरी एफ एम दैट इज विल बी बैलेंसिंग द वेट, क्योंकि नेट इफेक्ट तो जीरो होगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। अब यहाँ पे वी कैन सी कि एफ एम को हम क्या लिख सकते हैं, आई एल बी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी। सो यहाँ से आई की वैल्यू अगर हम देखें सो दिस इम्प्लाई दैट आई विल बी इक्वल्स टू एम जी अपॉन आई इंटू सॉरी एल इंटू बी। तो एम जी एल बी सारी वैल्यूज गिवन है हमें, तो वी कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू। अब हमें लेंथ तो गिवन है बेसिकली, मास गिवन है इसका 0.2 kg, तो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर आई विल बी इक्वल्स टू 0.2 इंटू जी 9.8 गिवन है डिवाइडेड बाय एल। लेंथ अगर देखा जाए तो सेपरेशन कितना है 1 मीटर है, तो लेंथ भी वही होगी 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.6 टेस्ला है। सो आई की वैल्यू जो आएगी हमारे पास दैट कम्स आउट टू बी, or else we can just keep it value as it is 9.8 by 3 and it will be in ampere, ठीक है। सो नाउ वी कैन से E जो है हमारा, E को हम क्या लिख सकते हैं, BVL। अब V को हम लिखेंगे VT इंटू L। क्यों लिख रहे हैं VT, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग इट आफ्टर द टर्मिनल वेलोसिटी हैज अटेन्ड, राइट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 इंटू L तो 1 है इंटू VT, ठीक है। अब फर्दर वी नो के, सो लेट्स से इसको हम मान लेते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इसको हम 2 कह देते हैं लेट्स से, एंड ये करंट वाले इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैन सी हमें पावर भी गिवन है, तो पावर को हम लिख सकते हैं, पावर दैट इज P1, इसको हम लिखा जा सकता है E स्क्वायर बाय R1, एंड पावर P2 डिसिपेशन को हम लिख सकते हैं E स्क्वायर बाय R2। सिंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए स्क्वायर हमने लिखा है। अब E की वैल्यू हमें ऊपर से देख सकते हैं हम 0.36 VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, राइट। और यस इसको R1 लिखते हैं एंड यहाँ पे लिखा जाएगा 0.36 VT स्क्वायर अपॉन R2। सो यहाँ से अगर हम देखें तो R1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 0.36 VT स्क्वायर बाय P1। P1 अगर हम देखें तो P1 हमें गिवन है 0.76 एंड R2 हम लिख सकते हैं सिमिलर वे में 0.36 VT का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.2, क्लियर। तो अब फर्दर वी कैन सी इफ वी डिवाइड द टू एक्सप्रेशंस, सो देयरफॉर अगर हम इन दोनों को एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 बाय R1, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.76 बाय 1.2, ठीक है। नाउ वी कैन राइट I can be written as by Ohm's law E upon R net। So E तो हमारे पास है 0.6 of VT डिवाइड बाय R net को हम क्या लिख सकते हैं, since both are in parallel connected so R1 R2 upon R1 plus R2। इसको अगर हम फर्दर रिजॉल्व कर लें तो वी कैन सी डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं, हमें सिंस R2 बाय R1 का रेशियो नोन है तो हम R1 से डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स को। सो ये हो जाएगा R2 अपॉन 1 प्लस R2 बाय R1 हो जाएगा, एंड इसको फर्दर अगर हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा 1 प्लस R2 बाय R1, ठीक है। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन देयरफॉर वी कैन से, तो वी कैन से नाउ फ्रॉम हियर
0.6 वैल्यू डाल देंगे R2/R1 की 0.76/1.2, देयरफॉर I विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा VT/R2 एंड 0.6 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो 0.6 प्लस ऑफ 0.6 इंटू R2/R1 है 0.76 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है, यस। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन हैव VT/R2 एंड ये हो जाएगा 0.6 प्लस ये 2 जा, तो ये हो जाएगा 0.76/2, ठीक, एंड दैट इज इक्वल्स टू I। सो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करके लिखा जाएगा VT/R2 and this will be 0.38 plus 0.6, that will be 0.98, और I की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं 9.8/3, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी के VT अपॉन R2 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 10/3, ठीक। नाउ वी कैन से कि हमें पता है VT की वैल्यू और R2, अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो R2 को क्या लिखा जा सकता है 0.36 VT स्क्वायर बाय दिस, या फिर VT स्क्वायर बाय R2 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लेट्स से ये एक्सप्रेशन हम कह देते हैं इसको स्मॉल a और इसको हम कह देते हैं स्मॉल b। तो फ्रॉम स्मॉल b वी कैन से, फ्रॉम ये एक्सप्रेशन से हम क्या देख सकते हैं कि VT स्क्वायर बाय R2 इज इक्वल्स टू 1.2 by 0.36 which is again equals to 10/3 only, ठीक है। सो वी कैन सी फ्रॉम हियर, ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दिस टू, अगर हम इन दोनों को देखें ध्यान से तो VT की वैल्यू, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर C एंड इक्वेशन नंबर D। सो इफ वी डिवाइड D बाय C, तो हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या बचेगी, VT विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड, जो कि हमारा है x मीटर पर सेकेंड गिवन, ठीक है ना, x गिवन है। अगर हम देखें टर्मिनल वेलोसिटी को तो ये x गिवन है। अब हमें R1 और R2 भी निकालना है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1। सो R1 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 कैन बी रिटन एज, पहले हम इक्वेशन 2 से फ्रॉम सेकेंड एक्सप्रेशन E इज इक्वल्स टू क्या होता था 0.6 ऑफ VT, यानी कि 0.6 ही आएगा। एंड फ्रॉम एक्सप्रेशन नंबर अगर हम देखें C A, फ्रॉम A से हम देख सकते हैं कि क्या था हमारे पास, R1 की वैल्यू थी 0.36 VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.76, तो VT स्क्वायर तो 1 आ गया, और 36/76 दैट इज 18/38, या फिर हम यूँ कहें 9/19। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ R1, दैट इज 0.47, हम इसको बोल देंगे ओम्स, ठीक है। सिमिलर वे में हम R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर R2 विल बी इक्वल्स टू, R2 के लिए अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो ये छोटा वाला b का जो एक्सप्रेशन था वो लिया जाएगा 0.36 VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2। सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.36 डिवाइड बाय 1.2, इसको लिख सकते हैं हम 0.3 ओम्स। तो ये मिल गया हमें R1 R2। अब R1 हमारे लिए था कि एक्चुअली y था, ये y, और R2 z था, तो दिस इज अवर y एंड दिस इज अवर z। तो हमें फाइनली फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था, देयरफॉर फाइनल जो हमें फाइंड करना था जो वैल्यू थी वो थी x प्लस 76y, x प्लस 76y प्लस 10z, यही था, यस। तो एक एक करके वैल्यू डाल देंगे। x हमें मिला 1 प्लस 76 इंटू वाई हमें मिला है 0.47 प्लस 10 इंटू 0.3, so this comes out to be 39.72. so this is the total value of the required answer we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.